ملتان بن گیا مسائلستان، مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ٹی بی اسپتال روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹھیکیدار غائب، گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے، مٹی اڑنے سے سڑک کے اعتراف، کاروبار بھی ٹھپ پڑ گیا۔ شہر اولیا کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ قدیمی ٹی بی ہسپتال روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گہرے گڑھوں کی وجہ سے حادثات معمول، جبکہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ہم یہاں بہت تنگ ہو گئے ہیں، تو ہر دکاندار یہاں بہت تنگ ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے، سب کے پاس گئے ہیں، کسی نے ہماری نہیں سنی۔ ایم این اے، ایم پی اے جو جتنے بھی ہیں سب کے پاس گئے ہیں، ایم ڈی واسا کے پاس گئے ہیں، کسی نے ہماری نہیں سنی۔ یہ اب آدھا روڈ بنا کے وہ بھی جیسے بن گیا، آدھا روڈ چھوڑ گیا، روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ گرد و غبار کی وجہ سے علاقہ مکین بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ جو روڈ ہے یہ اپنا ملتان کا مین روڈ میں شامل ہوتا ہے۔ اسٹیشن کو راستہ جاتا ہے، غلہ منڈی کو جاتا ہے، سرافہ بازار، لوہا مارکیٹ، حرم گیٹ، پا گیٹ، حرم گیٹ، اچھا جی، ٹمبر مارکیٹ۔ تو میں تمام انتظامیہ سے یہ درخواست کروں گا، برائے مہربانی ہمارے اس روڈ پر توجہ دی جائے، ہمارے روزگار کو تاکہ بہتر بنایا جائے۔ برائے مہربانی جتنی جلد ہو سکے یہ کام کیا جائے۔ تاجروں اور علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے فوری طور پر روڈ مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ میاں چنو اور گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو، دن بدن اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ میاں چنو اور اس کے گرد و نواح میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اے روز اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے خریدار کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہے۔ جو پہلے غریب آدمی 2 کلو چینی لیتا تھا، اب وہ 1 کلو پہ آ گیا ہے، اور اتنی پریشانی ہے کہ جو ہماری سیل تھی وہ آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو قابو میں لایا جائے اور ہم پہ تھوڑا سا رحم کیا جائے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مزدور آدمی کا جینا دو بھر کر دیا۔ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ پہلے گاہک 2 کلو چینی خریدتا تھا، اب 1 کلو پر آ چکا ہے۔ 700 روپے مزدوری ہے اور گھر کا خرچ جو ہے نا 1000 سے زیادہ ہے۔ آٹا لینے آتے ہیں، 5 کلو آٹا 750 روپے کا بنتا ہے۔ اب آٹا لیں یا چینی لیں یا گھی لیں یا پتی لیں یا بچوں کی فیسیں بھریں، کیا کریں؟ اتنی مہنگائی ہے۔ پہلے 1 کلو چینی گھر کے لے جاتے ہیں، اب 1 پاؤ چینی خریدتے ہیں جس کے اندر گزارا کرتے ہیں اپنا۔ میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا ہم پہ جو ان سے تھوڑا سا رحم کرے۔ شہریوں نے نگران وزیر اعظم سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد عمر کے ساتھ غلام حیدر، روہی، میاں چنو۔ بھکر میں خشک میوہ جات کی مانگ اور دام دونوں میں اضافہ، شہری ڈرائی فروٹ کی قیمتیں سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ بادام، کاجو، اخروٹ، کشمش اور پستے کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ بکھر میں ڈرائی فروٹ کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خشک میوہ جات خریدنا غریبوں کے بس کی بات نہیں، صرف امیر آدمی ہی ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال 2300 روپے میں ملنے والا کاجو اس سال 3300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ امریکن بادام 1200 سے بڑھ کر 1800 روپے، سادہ بادام 600 سے بڑھ کر 1100 تک پہنچ گیا، جبکہ اخروٹ، کشمش، مونگ پھلی بھی پہنچ سے دور ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا ہے، میں نے کہا چلیں گھر والوں کے لیے سردی سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ ڈرائی فروٹس کا پتہ کرتا ہوں۔ تو یہ خان بھائی سے میں ریٹ لے رہا ہوں، وہ یہ بادام پچھلے سال یہ جو 400 روپے کلو ملتے تھے، یہ جو دوسرے ہیں کاٹھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 600 روپے کلو ملیں گے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ بارڈر کی بندش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ڈرائی فروٹ مہنگا ہوا۔ پیچھے سے مال مہنگا ملے گا تو مہنگا ہی فروخت کریں گے۔ پوچھنے والا گاہک زیادہ جبکہ خریدنے والے کم ہیں۔ کلو والا گاہک 200 گرام تک آ گیا ہے۔ امریکن بادام 2 مہینے پہلے ہم نے خود لیا تھا 1800 روپے کلو، اب بل لیا تھا 2600 روپے کلو۔ تو یہ ڈالر کا ساتھ تعلق، دوسرا بات یہ نقصان سب سے زیادہ دکاندار کو پہنچ گیا، کیونکہ پہلے جو بندہ کلو لینا تھا، آدھا کلو لینا تھا، اب وہ بندہ سٹاک پاؤ پہ آ گیا، زیادہ نقصان پہنچ گیا۔ دوسرا دکاندار پہلے جو 20 لاکھ کا کاروبار کرتا آج کل وہ 40-50 لاکھ پہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے خشک میوہ جات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین صفدر عباس کے ساتھ اسلم بلوچ، روہی نیوز، بکھر۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جامپور انتظامیہ نے کھاد کی کنٹرول ریٹ پر دستیابی کے لیے سینٹر کھول دیا ہے۔ کسان فرد ملکیت کا گوشوارہ دکھا کر فی ایکڑ 2 بوری یوریا اور دیگر کھادیں لے سکتے ہیں۔
किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जामपुर इंतजामिया ने कंट्रोल रेट पर खाद फराहमी के लिए सेंटर खोलकर पहना फ्लेक्स अवेजा कर दिए। रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि तहसील भर के देही इलाकों में ऐलानात करके खाद की कंट्रोल रेट पर दस्तयाबी और सेंटरों बारे आगाह कर दिया गया है। किसान फर्द मलकियत का गोशवारा दिखाकर फी एकड़ 2 बोरी यूरिया और दीगर खादें ले सकते हैं। सेंटरों का मकसद किसानों को कंट्रोल रेट पर खादें मुहैया करना है। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत की गई है कि आप कंट्रोल रेट पर जो है ना किसानों को जो है ना ये खाद यूरिया दें और जो भी खाद है सारी दें और साथ फर्द मलिकत लेके आए और किसान को पता होगा कि कितने उसका रकबा काश्त के उसके मुताबिक हम उनको खाद फराहम कर रहे हैं। तहसील भर में मुख्तलिफ मार्केट्स में ये सेंटर कायम किए गए हैं जहाँ पे काश्तकार अपनी काश्त के मुताबिक यानी फर्द मुल्कियत दिखाकर उसके मुताबिक जितनी उसकी काश्त बनती होगी हम उनको उसके फी एकड़ 2 बोरियां पहले 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से उनको देंगे पहले पानी के लिए और दूसरे पानी के लिए बाद में 1 बोरी और फी एकड़ के हिसाब से देंगे। दुकानदारों ने बताया कि सेंटर पर तमाम खादें कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हैं। किसान ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अब खाद कंट्रोल रेट पर दस्तयाब है। काश्तकार आता है अपना गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए गए उसूल हैं गोशवारा लेकर हम उससे जो है ना कंट्रोल रेट के मुताबिक यूरिया खाद हो, DAP हो, नाइट्रोफास हो, तमाम खादें जो है ना इंतजामिया की तरफ से दिए गई हिदायत के मुताबिक फार्मर्स को दे रहे हैं। पहले खाद के ने बहुत परेशान थे, खाद का मसला बनता पाया। इंतजामिया की बड़ी मेहरबानी है, सबको कंट्रोल रेट दे चवाड़ी तेने इन्हें बड़ी मेहरबानी है। वज़ीर आला का भी बड़ा एहसान है, उन्हें मेहरबानी। किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब के एहसन इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जामपुर। लोधरा शहर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम, चोर और डकैत बेलगाम, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 10 माह के दौरान 300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और दर्जनों गाड़ियां चोरी हुई। शहरियों ने RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लोधरा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा अहम मकामात पर HD कैमरे निस्ब किए गए, जिसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। जराइम पेशा अफराद की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए ये मंसूबा 2 साल कबल पेश किया गया। तमाम कैमरों को DPO ऑफिस से ऑपरेट किया जाता था। किसी भी वारदात को ट्रेस करने में मदद मिलती थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट चंद माह से बंद किया हुआ के वारदातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। 10 माह से 300 से ज्यादा मोटरसाइकिल और दर्जनों गाड़ियां चोरी हो गयी। शहरियों ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोबारा फाल करने का मुतालबा कर दिया। हर चौक में कैमरे लगने चाहिए। इससे ये है कि अफसरान को पता चलेगा कि हमारे बंदे के बिना कौन से डकैत कौन से वारदाती हैं जो उनसे यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मेरी अब शॉप की 7 बार वारदात हो चुकी है। अगर कैमरे लगे होते तो इससे हमें टेंशन ना होती। वारदाती जो उनसे हैं वो इजीली यानी कि हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। शहर भर में लगे HD कैमरों की मदद से जराइम पेशा अफराद की नकल और हरकत पर कड़ी नजर रखी जाती थी। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। कहरोड़ पक्का में शहरियों को मुफ्त तिबी सहूलियात फ्राहम करने के लिए 2 रोजा अली हसन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। साबिक डायरेक्टर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर और डॉक्टर सैयद हसन रजा ने शहरियों का तिबी मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फ्राहम की। कहरोड़ पक्का में शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए 2 रोजा अली हसन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पहले दिन दी विजडम कॉलेज में कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर्स ने 400 से ज्यादा मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल कैंप अरसा 20 साल से लगाया जा रहा है। अली हसन मेडिकल कैंप में मुफ्त उदियात, चेकअप और टेस्ट किए जाते हैं। ये कैंप जो है इसका सरीहन मकसद तो है अपनी जो अवाम में और अपने जो हमारे मुहसिन है उनकी खिदमत, और जिस तरह आपने फरमाया ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। फरमान रसूल अलैहिस्सलाम भी है जब सर्दियाँ आएँ तो आप उससे बचें, और क्योंकि वो आपको खुद नुकसान दे सकते हैं और जब जा रही हो तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद होती। शहरियों का कहना था कि अली हसन कैंप में एक शख्स ने अकेले सफर शुरू किया, आज मेडिकल टीम के साथ एक मुकम्मल कारवां बन चुका है। फ्री मेडिकल कैंप किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड़ पक्का। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में माजूर अफराद के आलमी दिन पर फेस्टिवल सज गया। खुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ गेम्स और खाने पीने के स्टॉल सजाए गए। मलबूसात और सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर बेखूब रश रहा। में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स और दीगर समाजी तंजीमों के इश्तराक से माजूर अफराद के आलमी दिन पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में फेस्टिवल सजाया गया। खसूसी अफराद, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये हमारी 10वां इवेंट है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हर साल हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद करते हैं।
तो इसमें का मकसद ये होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं डिसेबल पर्सन के, और ख़ास तौर पर जो गेम्स हो रही होती हैं व्हील चेयर के ऊपर, ब्लाइंड पर्सन की, डेफ की, उससे बहुत ज़्यादा आगाही मिलती है कि सिर्फ यानी कि एक माशरे में तब्दीली लाने के लिए माजूर अफराद को उनकी माजूरी के मुताबिक सहूलतें देना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिवल में माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ गेम्स और खाने पीने के स्टॉल सजाए गए। खसूसी अफराद के लिए व्हीलचेयर क्रिकेट मैच और दीगर खेलों का इनेकाद किया गया। मलबूसात और सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। शुरका का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद माजूर अफराद की सलाहियतों को उजागर करना है। अच्छा लगता है कि जब हमारे तमाम बच्चे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे और हम इनके लिए एक्टिविटी करवाते हैं। इसका करवाने का मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को उनमें एतमाद देना चाहते हैं और उनमें हम चाहते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों की तरह वो भी अपनी खुशी का इजहार करें, अपनी सलाहियतों का इजहार करें। जैसे कि आप देख रही हैं कितनी अच्छी गेम्स हो रही है और हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ के, और हमारा मकसद यही है कि हमें बच्चों को तालीम के साथ साथ तफरीह के मौके भी दिए जाएँ। शुरका का मजीद कहना था कि माजूर अफराद भी हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। उनकी हौसला अफजाई से माहौल को मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड बहावलपुर में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर रंगारंग तकरीब। डेप्यूटी कमिश्नर जहीर अनवर, डायरेक्टर मार्केटिंग पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सलमान बुखारी, स्कूल प्रिंसिपल मिस इरम, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और माजूर अफराद की शिरकत थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में बहावलपुर के सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में पुरवकार तकरीब सजाएगी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खुसूसी बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को हैरान कर दिया। तकरीब में डायरेक्टर मार्केटिंग पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सलमान बुखारी, स्कूल प्रिंसिपल मिस इरम, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, माजूर अफराद और ब्लाइंड स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। सिर्फ आपको दाल देना वो नाइंसाफी होगी। इतनी मेहनत आप करते हैं, आपने आज अपनी परफॉर्मेंस से ही इतने साबित कर दी कि आप अगर देख नहीं सकते लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़े और तरीकों से कंपनसेट किया। आज आपने हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखी आज के दिन के हवाले से, तो इससे साबित होता है ये बच्चे कहीं से भी कम नहीं है। और आज के हवाले से मेरा इन बच्चों के लिए मैसेज है, दे आर नॉट डिसेबल्ड। माजूर बच्चों ने तकरीब सजाने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अगर सहूलियात दी जाएं तो खुसूसी अफराद भी जिंदगी की दौड़ में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। बेसिकली आज का दिन इस मकसद के लिए मनाया जाता है कि बसारत से महरूम अफराद और उनसे मुंसलिक जितने भी डिसेबिलिटी इश्यूज, चैलेंजेस फेस करने वाले लोग हैं, उनकी एबिलिटीज, उनकी पावर्स को एक्सपोज किया जाए। इन स्पेशल अफराद को तालीम और तरबियत दे ताकि ये एक मुफीद और कारआमद शहरी साबित हो सके। रंगारंग तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी बच्चों जबकि स्कूल इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को यादगारी शील्ड पेश की। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। हिम्मत और जज्बा हो तो माजूरी भी ताकत बन जाती है। खानपुर, खानेवाल, मेंशनाबाद और कोट अद्दू में खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीबात। स्पेशल बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। बच्चों ने इसराइली मुजालिम की खूब अक्कासी की। इस मौका पर खुसूसी बच्चों को मेडल्स भी पहनाए गए। खानपुर स्पेशल एजुकेशन स्कूल में खुसूसी बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल बच्चों और इनके वालिदैन ने शिरकत की। बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमों में इसराइली मजालम की खूब अक्कासी की। शुरका का कहना था कि खुसूसी तवज्जो दी जाए, स्पेशल बच्चे भी किसी से कम नहीं। इस मौके पर बच्चों को मेडल्स पहनाए गए और ट्रॉफियां भी दी गईं। खानेवाल में कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। माजूर अफराद में 15 व्हील चेयर तकसीम की गई। शुरका का कहना था कि खुसूसी तवज्जो से बच्चों को माशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। मंचनाबाद में भी खुसूसी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। 1 साल की उम्र में पोलियो के बायस माजूर होने वाले मलक शकील ने माजूरी को मजबूरी न बनने दिया। हुनर सीखने के बाद बाइज्जत रोजगार कमाने लगा। स्पेशल पर्सन का कहना था कि हिम्मत और जज्बा हो तो माजूरी भी ताकत बन जाती है। शहरियों का कहना था कि शकील बहुत अच्छी सिलाई करता है। बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। इनके हाथ में सफाई भी और डिजाइनिंग वगैरह बहुत ही आला करते हैं। ये अच्छापन है कि अपने बच्चों का पेट भरता है और अपना कारोबार करता है। कोट अद्दू में खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद की गई। खुसूसी बच्चों में 20 व्हील चेयर तकसीम की गई। अमीर जमात इस्लामी फुरकान बुज़दार ने मुखय्यर हजरात से माजूर अफराद के लिए ताउन जारी रखने की अपील कर दी।